Hello everyone, I am Hemlata Lydia and today we are going to discuss conditionals. Do you know what are conditionals? What is the definition of conditionals and how many types of conditionals are there? If you don't know, you will get to know after this video lecture what are conditionals, what is the definition of conditionals and how many types of conditionals are there. You will also know how to form conditionals, what is the syntax of conditional sentence. We are going to discuss all these things in this video lecture. So let's get started. So first of all, let me introduce what is a conditional. So a conditional sentence is the one in which one thing depends on the another. So what is a conditional? A conditional sentence is that sentence in which one thing depends on the another. Means एक चीज दूसरी चीज पर depend होती है and when do we use them? We use them to make predictions or to explore possibilities. So basically what this sentence says that conditional sentence, they are the sentence which depends on one another. एक चीज दूसरी चीज पर depend है, like if you do this, it will happen. So a conditional sentence is a sentence that expresses a condition. आपको हमेशा conditional sentence में क्या मिलेगी? एक condition होगी. And if that conditional gets fulfilled, वो condition fulfill होती है, so the result will be favorable or the result will be imaginary. Okay, so let us discuss the definition of conditional. What is the definition of conditional sentence? Conditional sentences are the sentences that express factual implications or hypothetical situation and their consequences. क्या होता है conditional sentence? Conditional sentence वो sentences होते हैं जिसमें factual implications होते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स उनके रिजल्ट, उनके आउटकम होते हैं. ऑल राइट, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. हियर, इफ यू डू योर होमवर्क you can play games. Now, आपको you will be understand in a better way with this example. If you do your homework, now here what is the condition? अगर आप अपना homework करते हैं, so this is the condition over here in this sentence. If you do your homework, all right, you can play games. So what will be the result, the outcome? If the condition gets fulfilled, what will happen? आप बाहर खेलने जा सकते हो. You can play games. So this is the outcome, this is the consequences. All right, so this will be the consequences, this will be the result if the condition gets fulfilled, if you do your homework. Now let us see the next example, which says she will catch the bus if she gets up early. Now here the condition is in the last and the result is in the first place. Means जो sentence की beginning है वो result से हो रही है, she will catch the bus if she gets up early. So this can be done. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप if क्लॉज को पहले रखें, बिगिनिंग में रखें और मेन क्लॉज को बाद में रखें. आप मेन क्लॉज से भी बिगिन कर सकते हैं और इफ क्लॉज को आप लास्ट में रख सकते हैं. यू कैन चेंज देयर पोजिशन. सेंटेंस का कोई सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है. ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इफ यू डू योर होमवर्क यू कैन प्ले गेम्स. सो द कंडीशन इज, first what you have to do your homework, then
Afterwards, after completing the homework, you can go and play. Next is she will catch the bus if she gets up early. So what is the condition over here? To get up early, and if she gets up early, अगर वो जल्दी उठती है, what will happen? The result will be she will easily catch the bus. So this is the result. So as I told you that there is always a condition in conditional sentence, and वो condition अगर fulfill होती है तो जो result है वो आता है may be favorable or not favorable. It depends on the condition if it gets fulfilled. All right. So basically conditional sentences, they are made up of two clauses. Conditional sentence always contains two clauses, independent clause and dependent clause. Independent clause को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को हम इफ क्लॉज भी बोलते हैं. सो बेसिकली अ कंडीशनल सेंटेंस कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट clause and a dependent clause, if clause or main clause. Like in this example, if it rains, we will go out. So condition क्या है? अगर बारिश होती है हम क्या करेंगे? हम बाहर जाएंगे, we will enjoy, we will roam around. So बारिश में हम बाहर जाएंगे क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें भीगना पसंद है. So the condition is अगर बारिश होती है, अगर बारिश नहीं होती है तो हम बाहर नहीं जाएंगे. All right. The next example is if you stare at the sun. अगर आप sun को continuously stare करेंगे, देखते रहेंगे एक टक, तो क्या होगा? Your eyes will be damaged. आपकी eyes क्या होगी? Damage हो जाएगी. All right. So the condition is अगर आपने किसको देखा? सन को बिल्कुल एक टक देख रहे हैं, कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो उससे आपकी आंखें खराब हो जाएगी. सो दिस विल बी द रिजल्ट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा एक कंडीशन दी हुई होती है और फिर मेन क्लॉज में जो है वो उसका रिजल्ट आता है. एंड कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा दो क्लॉजेस होते हैं, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. Now let us move to the next, that is the types of the conditional. So how many types of conditionals are there? There are four types of conditionals: zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. So zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. In this video lecture we are going to understand what is zero, what is first, what is second and what is third, and what is the difference in these conditional all four, and what is the syntax, means आप इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. This is very important. We should know this. All right. So let's begin with zero conditional. Zero conditional क्या होता है? Zero conditional is used to make statements. अब जीरो कंडीशनल को हम कब यूज करते हैं? टू मेक कंडीशनल, टू मेक स्टेटमेंट, सॉरी, अबाउट द रियल वर्ल्ड, एंड इट often refers to general truths such as scientific facts. So किस चीज को रेफर करता है? It refers scientific facts and general truths, and it is used to make statements. So please remember, ये statement होता है और ये किस चीज को रेफर करता है? Often about general truths and scientific facts. In these sentences, the time is now or always, and the situation is real and possible. इस टाइप के कंडीशनल में, जीरो टाइप के कंडीशनल में जो टाइम है वो हमेशा, जो भी रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा, वो हमेशा सेम होगा. अगर एक कंडीशन है तो उसका रिजल्ट हमेशा सेम होगा, प्रेजेंट ऑल्सो, इन फ्यूचर ऑल्सो एंड इन पास्ट ऑल्सो. देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्ट. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका सिंटेक्स क्या है, इसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए,
कौन सा टेंस हमें यूज करना है इफ क्लॉज में और कौन सा टेंस हमें यूज करना है मेन क्लॉज में. सो इफ क्लॉज, इन इफ क्लॉज वी विल टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस लेना है आपको इफ क्लॉज में. एंड इन मेन क्लॉज वी विल टेक अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज इट डील्स विद द फैक्ट. ये क्या रेफर करता है? फैक्ट बताता है, साइंटिफिक ट्रूथ, scientific facts, general truths बताता है. So that is the reason in both the clauses, whether it is if clause or main clause, we will take simple present tense. Now let us understand with the help of example. If it rains, the grass gets wet. Now what this sentence, this conditional sentence says, zero conditional if it rains. So this is if clause. और यहाँ पर कंडीशन है कि अगर बारिश होती है. सो दिस इज इफ क्लॉज एंड द कंडीशन इज देयर इफ इट रेन्स. अगर बारिश होती है तो क्या होता है? द ग्रास गेट्स वेट. क्या हो जाता है? जो ग्रास है वो क्या हो जाती है? वेट हो जाती है, गीली हो जाती है. दिस इज ट्रूथ. अगर कहीं पर भी बारिश होगी तो अगर घास है तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो सूखी रहेगी. ठीक है, अगर उसके ऊपर बारिश हो रही है तो ग्रास क्या होगी? इट विल बिकम वेट. सो दिस इज ट्रूथ. कभी भी कहीं पर भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी यही रिजल्ट आने वाला है. अगर ग्रास के ऊपर पानी गिरेगा, बारिश होगी तो क्या होगा? वो वेट हो जाएगी. ओके. The next sentence, the next example is ice melts if you heat it. इसमें क्या बताया है कि आइस क्या है? मेल्ट हो जाएगी. कब हो जाएगी भाई आइस मेल्ट? जब आप इसको हीट करेंगे. तो कोई भी आइस को हीट करेगा तो रिजल्ट क्या होगा? मेल्ट हो जाएगी आइस, राइट? सो द रिजल्ट, द आउटकम विल बी सेम. कहीं पर भी, एनीवेयर, मैं करूँ, आप करो, कोई भी अगर आइस को हीट करेगा तो जो आउटकम है, जो रिजल्ट है वो सेम आएगा. द आइस विल गेट मेल्ट. सो दिस इज हाउ आई विल से दैट जीरो कंडीशनल हमेशा रेफर करता है. किसको रेफर करता है भाई? साइंटिफिक फैक्ट्स को और जनरल ट्रूथ को. और इसकी जो सिचुएशंस है वो रियल है और पॉसिबल है और इनका जो आउटकम है वो हमेशा सेम होता है. All the time, present, past and in future. Okay, so the next one is first conditional. Now what is first conditional? फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? उसको हम कैसे बनाते हैं? इफ क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा, मेन क्लॉज में क्या टेंस आएगा? लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट कंडीशनल इज समथिंग दैट इज क्वाइट लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर. फर्स्ट कंडीशनल कौन सा कंडीशनल है? विच इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर. मतलब कि इसमें पॉसिबिलिटी है होने की, जो रिजल्ट है वो फेवरेबल आने की पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबल कंडीशनल, लाइकली कंडीशनल. एंड इसमें जो है, जो कंडीशन है वो कब फुलफिल हो सकती है? फ्यूचर में हो सकती है. तो दैट इज द रीजन इसका जो टेंस में है वो चेंजेस होंगे. आप इसका सिंटेक्स ध्यान से समझना, क्योंकि जीरो कंडीशनल में दोनों ही इफ क्लॉज और मेन क्लॉज में सेम टेंस हुआ है, बट यहाँ पर देर इज लिटिल चेंज. मेन क्लॉज में डिफरेंट टेंस है और इफ क्लॉज में डिफरेंस है. So the next point is, it is used for presenting future plans. When do we use first conditional? To present future plans, real possibilities, predictable consequences and instructions. Okay, so कब यूज करते हैं हम फर्स्ट कंडीशनल को? जब हमारा कोई फ्यूचर प्लान है, कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारे आउटकम है वो फ्यूचर में आने वाले हैं, एंड द पॉसिबिलिटीज आर रियल. प्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हमें पता है कि ये पॉसिबल है. एंड सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका सिंटेक्स क्या है, इसको हम फॉर्म कैसे करें, इसका स्ट्रक्चर क्या है. सो इफ क्लॉज में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लेना है. Simple present tense means V1 form of the verb means root form of the verb. But in main clause you will take will, can, may plus V1 means modals V, will plus V1, verb का first form. Okay.
Let us understand with the help of example. If the weather is nice, we can go for a walk. So condition क्या है यहाँ पर? अगर वेदर अच्छा हुआ तो हम क्या जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम वॉक पर चलेंगे. और कंडीशन फुलफिल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है अगर, बट कंडीशन क्या है, वेदर अच्छा होना चाहिए और हम डेफिनेटली हम वॉक पर जा सकते हैं. ओके. इफ आई मीट हर, I will give her an invitation. Next example ये बता रहा है, क्या कंडीशन बता रहा है if clause में, if I meet her, अगर मैं उससे मिलती हूँ तो मैं उसको invitation दूंगी. I will give her an invitation मतलब मैं उसको पार्टी के लिए इनवाइट करूंगी. बट कंडीशन क्या है, अगर मैं उससे मिल जाऊं और वो मुझे मिल जाएगी तो डेफिनेटली I will invite her for the party, right? So zero conditional, possible conditionals hai, but condition, if condition gets fulfilled. Let's move to the next conditional, that is second conditional. Second conditional refers to the present and the future. Second conditional क्या करते हैं, second conditional present और future को refer करते हैं. But second conditional expresses unreal situation. क्या करते हैं second conditional? They expresses unreal situation and its probable result. Unreal situation होती है और उसका जो result है फिर वो क्या आएगा, वो भी unreal ही होगा, possible थोड़ी होगा, right? The situation is improbable, sometimes possible, imaginary or contrary to the नोन फैक्ट्स. सिचुएशन क्या होती है उसमें, कंडीशन क्या होती है, इम्प्रॉबेबल होती है, राइट, एंड हाइपोथेटिकल होती है, इमेजिनरी होती है. हम उस चीज को सोच रहे हैं विच इज नॉट देयर इन दी प्रेजेंट. प्रेजेंट में वो चीज नहीं होती है एंड वी आर जस्ट थिंकिंग, वी आर जस्ट इमेजिनिंग दैट सिचुएशन विच इज नॉट देयर एट द प्रेजेंट. सो दैट इज द रीजन इसमें जो सिचुएशन है दैट इज इम्प्रॉबेबल, hypothetical and imaginary. Now let us understand what is the syntax of सेकेंड कंडीशनल. इसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इफ क्लॉज में कौन सा टेंस लगेगा, मेन क्लॉज में कौन सा टेंस लगेगा. सो स्टूडेंट्स हियर इन इफ क्लॉज इट विल टेक सिंपल पास्ट. नाउ व्हाट इज सिंपल पास्ट, आपने टेंस जरूर पढ़े होंगे. तो सिंपल पास्ट में क्या लगता है, V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑलराइट. एंड इन मेन क्लॉज अगेन would, could, might plus V1 means modals but in the past form और verb का first form लगेगा. Clear है सबको? Let's understand with the help of example. Example क्या कहता है, if I participated in the contest, I could win. Now here at present situation क्या है, सिचुएशन क्या है, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, आई एम जस्ट थिंकिंग. इफ आई पार्टिसिपेटेड, अगर मैं पार्टिसिपेट करूं कॉन्टेस्ट में तो क्या होगा, मैं जीत सकती थी, मैं जीत सकती थी. मतलब मैंने पार्टिसिपेट अभी नहीं किया है प्रेजेंट में, बस मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैं जीत सकती हूँ. मीन्स आई एम केपेबल टू विन, राइट. Next example, which is again an imaginary situation. Here you will see that past tense is there in if clause, but I के साथ मैंने were use किया है. If I were a bird, why I have used were here with I? आपको क्वेश्चन मार्क होगा आपके माइंड में कि यहाँ पर भाई आई के साथ तो वॉज आता है, मैम ने वर क्यों लिख दिया, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. सो नो, दिस इज नॉट रॉन्ग सेंटेंस यहाँ पर, क्योंकि सिचुएशन क्या है, एक इमेजिनरी सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. सो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें आप इमेजिन कर रहे हो विच इज समथिंग इम्पॉसिबल, राइट. तो आपको फर्स्ट ये आई के साथ ही, शी, इट, थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको क्या लगाना है, वर ही लगाना है, ठीक है. इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई. सो नाउ हियर आई एम इमेजिनिंग समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, अनलाइकली, कि क्या मैं बर्ड बनूंगी, पर मैं सोच रही हूँ, आई एम जस्ट thinking of a situation. If I were a bird I would fly. मैं क्या करूंगी, fly करूंगी.
ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगाना है हमें बीच में। If I were a bird, I would fly. So this is again a imaginary situation. ना तो मैं कभी bird बनूंगी और ना मैं कभी उड़ूंगी, ठीक है। So यहाँ पर एक ऐसी situation के बारे में बात कर रहे हैं which is unreal situation, and that is the reason जो हमारा outcome आएगा वो भी क्या होगा, इसका जो result है sometime it is possible but not always, हमेशा ही क्या होगा, इम्पॉसिबल है इसका जो आउटकम है, बिकॉज वी आर जस्ट इमेजिनिंग, हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जो एट प्रेजेंट में नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज थर्ड कंडीशनल। अब यहाँ पर हम सबसे लास्ट वाला जो फोर्थ कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल की बात कर रहे हैं, लास्ट टाइप ऑफ द कंडीशनल, दैट इज थर्ड कंडीशनल। एंड थर्ड कंडीशनल को हम कब यूज कर सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंटेक्स कैसा होगा, इफ क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा, मेन क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड, थर्ड कंडीशनल इज यूज टू टॉक अबाउट अनरियल सिचुएशन। नाउ अगेन द सेम थिंग, थर्ड कंडीशनल में भी हम क्या बात कर रहे हैं, अनरियल सिचुएशन की। सेकेंड कंडीशनल में भी हमने अनरियल सिचुएशन की बात की थी और यहाँ पर भी हम अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अनरियल सिचुएशन इन दी पास्ट, कब की अनरियल सिचुएशन, पास्ट की, बिकॉज इन दिस कंडीशनल जो एक्शन है वो ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में, द एक्शन हैड ऑलरेडी been completed in the past and the result of the action had already come। जो रिजल्ट है इसका, जो आउटकम है वो भी पास्ट में आ चुका है। सो नथिंग कैन बी डन, कुछ भी नहीं हो सकता है इस थर्ड कंडीशनल में। ओनली थिंग इज देयर, यू कैन सी दैट रिग्रेट इज देयर, बिकॉज एक्शन भी हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है, सिर्फ there is a kind of repentance, a kind of regret you can see in third conditional। let us understand its syntax, इसका structure समझते हैं हम। if clause में कौन सा टेंस आएगा, if clause में past perfect tense आएगा। स्टूडेंट्स, past perfect tense में क्या आता है, had plus V3। ओके, सो if clause में जहां पर आपको कंडीशन रखनी है वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब had प्लस V3 लेना है, और मेन क्लॉज में आपको लेना है would have प्लस V3। क्या लेना है आपको मेन क्लॉज में, would have प्लस V3। Let us understand with the help of example। if I had studied hard, I would have passed the exam। क्या कह रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल, if I had studied hard। okay, just see that past perfect tense here in the if clause, I would have passed the exam। now here you can see that if I had studied, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो मैं क्या होती, मैं आज पास हो गई होती, बट मैंने पढ़ाई की नहीं, रिजल्ट भी आ चुका है, मैं फेल हो गया। बट टुडे आई एम थिंकिंग कि अगर मैं पढ़ाई अच्छे से करती, अच्छे से मेहनत करती, सिंसियरली पढ़ाई करती तो क्या होता, मैं पास हो जाती। बट एक्शन हो चुकी है ऑलरेडी, रिजल्ट भी आ चुका है, सो नथिंग कैन बी डन। इट इज, so that is the reason this third conditional is also called impossible conditional, closed conditional। इसको हम impossible conditional और closed conditional भी बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्शन पास्ट में हो चुका है, रिजल्ट भी इसका आ चुका है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ सोच रही हूँ कि काश मैं अच्छे से पढ़ाई करती तो आज मैं पास हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, if I hadn't broken my leg, I would have gone skiing। अगर मेरा पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ होता, अगर मेरे पैर में फ्रैक्चर नहीं हुआ होता तो मैं कहाँ गई होती, अपने फ्रेंड्स के साथ स्कीइंग कर रही होती। बट हुआ क्या है एक्चुअल में, पास्ट में क्या हो चुका है, मेरा पैर फ्रैक्चर हो चुका है, मेरे पैर में चोट लग चुकी है और मेरे फ्रेंड्स जा चुके हैं स्कीइंग पे, मैं घर में बैठ के रेस्ट कर रही हूँ, because I'm not advised to go for skiing by my doctor। So
एक्शन जो है वो ऑलरेडी डन है, पास्ट में मैं अपना पैर तोड़ चुकी हूँ और मेरे दोस्त जा चुके हैं स्कीइंग पे और मैं घर पे रेस्ट कर रही हूँ. सो राइट नाउ व्हाट एम आई डूइंग, आई एम जस्ट रिग्रेटिंग कि काश मेरे पैर नहीं टूटा होता या मेरे को फ्रैक्चर नहीं हुआ होता, तो मैं आज अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती. सो in this lecture we understood all the four conditional. हमने इसकी definitions को समझा, हमने चारों conditional, zero type, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 कंडीशनल को समझा, हमने इनके स्ट्रक्चर को समझा, हमने कि इनको कैसे फॉर्म करते हैं, इफ़ क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा, मेन क्लॉज में कौन सा टेंस आएगा. वी अंडरस्टूड everything and I hope this will help you to do your exercises and solve your questions. Thank you.